Good day to all students. Previously, we discussing about DNA structure, transformation, and DNA genetic material Huss and Chase experiment, a comparison between DNA and RNA good genetic material. This is the third number session of the molecular basis of inheritance, chapter 6 of class 12 biology. Today's topic is DNA replication. So let us start this topic. This is very interesting topic, DNA replication. Okay, DNA replication. What do you mean by DNA replication? It is just a multiplying of DNA in number. The number of DNA is increases by a process. That mechanism is called DNA replication. Watson and Crick proposed the semi-conservative scheme of DNA replication. The scheme suggests that the two strands would separate of DNA act as template for the synthesis of the new complementary strand of DNA. Each daughter DNA molecule would have one parental strand and one strand is newly synthesized. That's why it's called semi-conservative method. So now we discuss about the another forms of DNA replication. The another two forms is conservative and dispersive. When the parental DNA multiply, but when both the strand of parental DNA remain with together in the next generation and newly DNA is completely, both the strand of newly DNA is synthesized safely, then it's called conservative. In the dispersive, the firstly double DNA strand is break down into smaller pieces and then it helps in synthesis of the two daughter DNA, then it's called dispersive. And in conservative, one parental strand remain in the daughter DNA and one is freshly synthesized, then it called semi-conservative method. So these are the three methods of the DNA replication. कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर पेरेंटल डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक ही डॉटर में ट्रांसफर होते हैं और दूसरी डॉटर के अंदर जो डीएनए बन रहा है वो बिल्कुल फ्रेशली सिंथेसाइज होता है केमिकल कंपाउंड से, नाइट्रोजन बेस से। और डिस्पर्सिव के अंदर डीएनए पहले छोटी छोटी ब्रेकडाउन टुकड़ों में पीसेज में ब्रेकडाउन हो जाता है और फिर वो पीसेज की हेल्प से दो डॉटर डीएनए सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए इसको डिस्पर्सिव कहते हैं। और सेमी कंजर्वेटिव के अंदर डीएनए टेम्पलेट जो है ओपन होते हैं, दोनों टेम्पलेट की तरफ वर्क करते हैं और उनके ऊपर न्यूली सिंथेसाइज डीएनए बनता है, यानी कि एक डॉटर डीएनए में पेरेंटल डीएनए होता है, एक स्ट्रैंड जो होता है वो न्यूली सिंथेसाइज होता है, इसीलिए इसको 50% पेरेंटल होता है, इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। और अपने कोर्स के अंदर जो है वो कौन सा है, सेमी कंजर्वेटिव। ओके, now Michelson and Stoll experiment about semi-conservative method. Matthew Michelson and Franklin Stoll performed experiment over the E. coli, over the which bacteria? E. coli, to prove the DNA replication. They grow E. coli in a medium containing NH4Cl for many generations. Consequently, the N15 was incorporated in both strands of the newly synthesized DNA. The heavy DNA means N15 can be separated from the normal N14 DNA by centrifugation cesium chloride method. Then they transferred the cell into the medium with normal NH4Cl and took out the sample at various time interval and extracted DNA and centrifuged to measure the density. So firstly, the DNA of E. coli is completely labeled with the heavy DNA. It means N15 DNA. The E. coli culture, E. coli बैक्टीरिया को 15 NH4Cl मीडियम में कल्चर किया जाता है। एक्चुअल में नाइट्रोजन का क्या एटॉमिक वेट होता है, 14। तो नॉर्मल नाइट्रोजन कौन सा हुआ, N14। लेकिन उस बैक्टीरिया को आप आइसोटॉप नाइट्रोजन N15 वाले वेट के साथ में NH4Cl के साथ में कल्चर कर रहे हैं और कल्चर करने से उन बैक्टीरिया के डीएनए में N14 तो रिमूव हो जाता है और सारा का सारा डीएनए का नाइट्रोजन किस में बदल जाता है, N15 में। जब वो कंप्लीटली N15 में उसका डीएनए बदल जाता है, देन उसको अगेन
N14 के मीडियम में कल्चर किया जाता है और उसको 1 जनरेशन, 2 जनरेशन और 3 जनरेशन तक देखा जाता है कि किस तरीके के चेंजेस आते हैं। The DNA expression from the cell after 1 generation of the transform N14 medium to N14 medium after 20 minutes had a intermediate hybrid density. It means when the complete N15 DNA is cultured in N14 NH4Cl medium, after 20 minutes 2 DNA are obtained and both the 2 DNA are hybrid because one of the DNA is N15 and the freshly DNA synthesized from the culture, that is N14. So 2 DNA is obtained and both are hybrid because these DNA consists one N15 strand and one N14 strand. After 40 minutes in second generation, the equal amount of light DNA and hybrid DNA, it means 4 DNA are obtained, 2 are heavy DNA, 2 are hybrid DNA and 2 are light DNA. किस तरीके से ऑब्टेन होते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं। इनिशियल में हमने डीएनए को कौन सा बना दिया था, इकोलाई के डीएनए को N15, क्योंकि हमने उसको लगातार 5-6 जनरेशन, एक्चुअली N14 होता है लेकिन इकोलाई को हमने 5 से 6 जनरेशन तक N15 मीडियम में कल्चर किया तो उसका कंप्लीट डीएनए किस में बदल गया, N15 में। फिर हमने अगेन उसको N14 में कल्चर किया तो क्या हुआ, ये जब दो N15 के डीएनए सेपरेट हुए तो N15 वाले सेपरेट हो गए, ये रेड कलर वाले पेरेंटल हो गए और ग्रीन कलर वाले जो है वो फ्रेशली कल्चर में से सिंथेसाइज होंगे। और कल्चर कौन सा है, NH414Cl। तो N14 तो 2 डीएनए बने और दोनों डीएनए कौन से बने, हाइब्रिड। दोनों डीएनए कौन से बने, हाइब्रिड, क्योंकि इस डीएनए के 2 स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड के अंदर N15 पेरेंटल वाला डीएनए स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड जो डीएनए का बन रहा है वो कल्चर से बन रहा है, वो N14 वाला बन रहा है। अगेन फिर 40 मिनट्स बाद में ये फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट हुई। अब सेकंड जनरेशन के अंदर क्या होगा, सेकंड जनरेशन के अंदर जो अगेन अगले 20 मिनट्स में कंप्लीट होगी तो आप उसमें देखोगे 4 डीएनए बनेंगे, 4 डीएनए में से 2 हाइब्रिड होंगे और 2 लाइट होंगे, यानी हाइब्रिड और लाइट का रेशियो कितना होगा, 1:1। तो यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया था तो हैवी डीएनए, क्योंकि डीएनए सारा N15 था तो एक बैंड बना था, हैवी बैंड बना था जो टेस्ट ट्यूब के सरफेस पे बना था, नीचे वाली सरफेस पे बना था और ये मिडल जोन में बना था हाइब्रिड का। और यहाँ पे हाइब्रिड और लाइट का 2 अलग अलग बैंड बन रहे हैं। तो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि जब भी न्यू डीएनए रेप्लिकेट होता है तो उनमें एक स्ट्रैंड तो पेरेंट से आता है और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होता है। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मेथड दैट इज कंक्लूड बाय Michelson and Stahl by this cesium chloride centrifugation, density centrifugation method. Then this experiment based on very sensitive cesium chloride gradient that can separate normal or light DNA. DNA regular nitrogen is what, N14, and isotopic is what, N15. Okay, so this is again the diagram representing the E. coli firstly culture in N15 medium to label all the nitrogen base of DNA with N15 isotope heavy nitrogen. Then after the N15 is allowed to culture in N14 medium, allowed to grow in medium containing the light isotope of nitrogen. Sample at 40 minutes, sample at 20 minutes, sample at 0 minutes, break open cell on extract DNA with the cesium chloride. So after 0 minutes, after 20 minutes, after 40 minutes, all the samples are extracted from cesium chloride density gradient centrifugation method and observe the ratio of DNA. This is again Matthew, Michelson and Franklin experiment in which the DNA cesium observed the ratio of DNA by the cesium chloride density centrifugation method. This is the after first 20 minutes the hybrid DNA is obtained. 2 bands are obtained after the 2 generation 40 minutes. The hybrid DNA band is separate, the light DNA band is separate and heavy DNA band is separate. This is defined on experiment value. Again this diagram represents that firstly at 0 second the N15 medium is there. So N15 DNA band obtained at the bottom level of the test tube.
then after 20 minutes it is hybrid, after 40 minutes 1:1 ratio of hybrid and light, okay, and after again 40 minutes again the ratio is 2:2, it is 1:1. So we can calculate the ratio of DNA by this experiment. Then Arthur Kornberg worked with E. coli, discovered the mechanism of DNA synthesis. So Arthur Kornberg ने DNA mechanism के बारे में बताया, एक्चुअली DNA रेप्लिकेशन होता किस तरीके से वो एक्सप्लेन किया। तो इसके अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं। पहले तो ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स, that is there are of 4 types: NTP, ATP, TTP, GTP, CTP. So these are what? These are actually nucleotides. Then DNA template, DNA polymerase Kornberg enzymes, and Mg+2 is the ion, co-ion, which helps in activity of the enzyme. Now, what is the mechanism of DNA replication? What is the process of DNA replication? First, the machinery of our DNA replication enzyme. The first enzyme is DNA dependent DNA polymerase enzyme. Its characteristic features are tremendous speed. It can help in polymerizing of DNA. It means help increasing the length of DNA. 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर 2000 बेस पेयर को जोड़कर एक लंबा डीएनए बनाता है। एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डायरेक्शन स्पेसिफिक, इट मीन्स पॉलीमराइजेशन ऑलवेज अकर इन विच डायरेक्शन 5-3 डेज, हमेशा पॉलीमराइजेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा 5-3 डेज। इसके अलावा हेलिकेज एंजाइम होता है, वो डीएनए के स्ट्रैंड को, डबल डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन करने में काम आता है। टोपोआइसोमरेज रिमूव द टॉरोजन फोर्स ऑफ द अनकॉइल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये मेनली प्रोकैरियोट्स के अंदर काम आता है क्योंकि उनका डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है, तो आगे जैसे ही ओपन करते पीछे की तरफ कॉइलिंग हो जाती है, तो उस कॉइलिंग को हटाने के लिए काम आता है। इसको लाइगेज भी कहते हैं, और ये लाइगेज एंजाइम टोपोआइसोमरेज को डीएनए गाइरेज भी कहते हैं, जो कि मेनली प्रोकैरियोट में काम आता है, यूकैरियोट में इतना काम नहीं आता। और लाइगेज एंजाइम जो डीएनए के नए न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के छोटे छोटे पीसेस बनते हैं, जिनको ओकाजाकी सेगमेंट कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड के ऊपर, उनको जोड़ने में काम आता है लाइगेज एंजाइम। सो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अभी तक हमने एंजाइम पढ़ा, किस तरीके से स्टार्ट होता है डीएनए रेप्लिकेशन। फर्स्ट इज ओराई, देयर इज द डेफिनेट रीजन इन ई कोलाई डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए, वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, सच रीजन इज टर्म्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आइदर इट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, द साइट ऑफ स्टार्ट ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड ओराई। जहां से रेप्लिकेशन शुरुआत होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओराई कहते हैं। प्रोकैरियोट में ओराई केवल एक होगा, क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है, और यूकैरियोट का डीएनए लीनियर डीएनए होता है, इसलिए उसके अंदर ओराई बहुत सेवरल हो सकती है, अलग अलग जगह से डीएनए कट किया जा सकता है। पहले डीएनए को कट करता कौन है, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कट करता है, और वहां से फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जो रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है। एनर्जी सोर्स में आपको पता है जितने भी ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स एटीपी की फॉर्म में रहते हैं। एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, इनमें से दो फॉस्फेट अलग होते हैं, बॉन्ड टूटने पर एनर्जी मिलती है और वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होते हैं, और वही न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं। Replication folks, since the two strand of DNA cannot separate in entire length, the replication occur within a very small opening of the DNA helix, referred as replication fork। ये definition जरूर याद करें, काफी बार 1 नंबर क्वेश्चन की definition पूछी जाती है कि DNA in eukaryotic is long, so the DNA replication start at a small length in which the two strand of the DNA open, that is called replication fork. The DNA dependent DNA polymerase polymerize only in one direction, that is 5 days 3 days on one strand. The template with polarity 3 days 5 days। तो टेम्पलेट जो होता है वो कौन से पॉलिटी पे होता है, टेम्पलेट डीएनए पेरेंटल स्ट्रैंड दोनों टेम्पलेट है, ठीक है, 3 days 5 days। द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस वाइल ऑन द अदर स्ट्रैंड द टेम्पलेट विद 5 days 3 days। तो 3 days और 5 days पे जो न्यूली डीएनए बना हुआ है वो कंटिन्यूस बन रहा है, और 5 days और 3 days पे जो न्यूली डीएनए बन रहा है वो डिसकंटिन्यूस बन रहा है, क्योंकि नया डीएनए बनता है 5 days 3 days में, तो जैसे ही बाहर की तरफ बनेगा और ओपन होगा तो फिर से ये अंदर से अपन को नया बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टार्टिंग जो होती है वो आरएनए पॉलीमरेज से, आरएनए प्राइमर से होती है। सबसे पहले प्राइमर लगाया जाता है, प्राइमर के बाद में जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच किया जाता है। तो
3 days 5 days टेम्पलेट पे कंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड बनता है और 5 days 3 days पे डिसकंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड बनता है। और डिसकंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड जो टुकड़ों में बन रहा है उन टुकड़ों को ओकाजाकी सेगमेंट कहते हैं। और ओकाजाकी सेगमेंट को कौन से एंजाइम से जोड़ा जाता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम से जोड़ा जाता है। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूस ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड। जिस स्ट्रैंड पे कंटिन्यूस हो रहा होता है उसको लीडिंग कहते हैं और जिस पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अनवाइंडिंग ऑफ एनी सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन फॉर प्रोसेस इन वन डायरेक्शन। द टू डीएनए स्ट्रैंड आर अपोजिट पोलैरिटी। डीएनए पॉलीमरेज ओनली सिंथेसाइज इनटू 5 days 3 days। लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में काफी बार डिफरेंस पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें। लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है सिंथेसाइज 5 days 3 days इन द डायरेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क मूवमेंट। ये 5 days 3 days में रेप्लिकेशन फॉर्क मूवमेंट में इसमें जो स्ट्रैंड बनता है वो कंटिन्यूस होता है। रिक्वायर अ सिंगल आरएनए प्राइमर। इसमें एक ही आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है क्योंकि जैसे स्ट्रैंड ओपन होता है उसकी डायरेक्शन में ही नया डीएनए बन रहा है, तो एक ही सिंगल प्राइमर की ओपनिंग होती है, एक सिंगल प्राइमर की जरूरत पड़ती है। लैगिंग जो हो रहा है वो 5 days 3 days डायरेक्शन में ही हो रहा है, लेकिन ये 5 days 3 days टेम्पलेट पे होता है और डिसकंटिन्यूस होता है। इसके अंदर आरएनए प्राइमर एक से ज़्यादा जरूरत पड़ती है और इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, उनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। तो ये लीडिंग और लैगिंग के बीच में डिफरेंस है, आप इसको नोट कर लें और एक टेबल बना लीजिए। देन ये आप डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा। सुपरकॉइल डीएनए रिलैक्स बाय गायरेज अनबाउंडेड बाय हेलिकेज एंड प्रोटीन। तो सबसे पहले डीएनए जो ओपन हुआ है, ये डीएनए ओपन किस एंजाइम की हेल्प से हुआ है? हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से। कौन सा एंजाइम इस डीएनए को ओपन कर रहा है? हेलिकेज एंजाइम ओपन कर रहा है। ओके, उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हेलिकेज और इनिशिएटेड प्रोटीन इसको ओपन कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ ओपन करने के बाद में यहाँ जो ये एसएसबी प्रोटीन है ये इसको ओपन बनाए रखते नहीं तो वापस अटैच हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इनके अंदर। अगर ये जुड़ गए तो वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ जाएंगे, तो इनको ओपन कंडीशन में ही रखने के लिए एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, द अनदर नेम इज हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, हेल्प्स इन maintaining the open state of the DNA. Then this is primase enzyme. Primase enzyme helps in attachment of RNA primer. RNA primer को help करता है attach के लिए. When on the 3 days 5 days template, the strand is continuous. This is called leading strand. Template strand is called leading strand and it is continuous. On the leading strand, the new synthesized DNA is continuously synthesized in 5 days 3 days polylated. And for the increasing the length of DNA, the DNA polymerase third enzyme helps in the increasing the length. Now in another strand, lagging strand, the polymerase strand also helps in the synthesizing of the DNA, but they are formed in the small fragment. This small fragment is called Okazaki fragment. More than one RNA primer is required because its site is from interior to exterior. Then RNA primer replaced by polymerase first and gap is filled by ligase. After complete synthesis of the newly synthesized DNA strand, the gap is filled by ligase and RNA primer removed by DNA polymerase first enzyme. So this is again the diagram in which there is a SSB protein, DNA template, replication form, Okazaki fragment, all things already discussed in the previous slide. The ligase helps in what? Helps in filling the gaps, and the proofreading done by, this is proofreading. C के सामने A आ गया है, साइटोसिन के सामने एडेनाइन जो एक फॉल्स नाइट्रोजन बेस एड हो चुका है उसको पहले हटाया जाता है और जो राइट नाइट्रोजन बेस है उसको जोड़ा जाता है। इसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं। और प्रूफ रीडिंग के अंदर भी एक्सोन्यूक्लियेज जो पॉलीमरेज हुआ वो 3 days 5 days के अंदर हुआ है और प्रूफ रीडिंग के अंदर भी जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी काम आता है और सेकंड भी काम आता है। सेकंड मोस्टली रिपेयर में काम आता है। कौन सा एंजाइम किस में काम आता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यूकैरियोट एंजाइम के अंदर डीएनए पॉलीमरेज के एंजाइम कितना होता है? एंजाइम तो एक ही होता है। द नंबर ऑफ एंजाइम इज 1, ओनली 1। द नंबर ऑफ एंजाइम इज 1 बट इट्स 5 unit is there. The first unit is alpha, second is beta, third is gamma, delta and epsilon. Alpha unit helps in what? Initiation of replication.
बीटा यूनिट हेल्प्स इन व्हाट? डीएनए रिपेयर. ओके. गामा यूनिट हेल्प्स इन व्हाट? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर. देन डेल्टा bind the 5' 3' strand in order to bring nucleotide and create the daughter leading strand. लीडिंग स्ट्रैंड पे आपको पॉलीमराइजेशन में हेल्प कौन करेगा? डेल्टा. एप्सिलॉन लैगिंग स्ट्रैंड पे पॉलीमराइजेशन में हेल्प करेगा. तो इस तरीके से सबका अलग अलग फंक्शन होता है. न्यूक्लियस रिमूव रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द डॉटर डीएनए, यानी कि ये प्रूफ रीडिंग में काम में आता है. तो अलग अलग एंजाइम एक है, एंजाइम की 5 यूनिट है, सभी के काम अलग अलग है. ये आपका नीट लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं जो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है, क्योंकि ई कोलाई पे भी एक्सपेरिमेंट हुआ था. जो हमने डिस्कस किया वो लीनियर डीएनए था. जो अभी डेफिनेशन वगैरह या जो मैकेनिज्म पढ़े वो यूकेरियोट्स की पढ़ी, लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन होता है ई कोलाई में, क्योंकि वास्तव में तो मेसेल्सन और स्टाल के हमने जो सेमी कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट बताया वो ई कोलाई का था, प्रोकैरियोट में था. तो प्रोकैरियोट में जो रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं बनता है क्योंकि लीनियर डीएनए नहीं होता. प्रोकैरियोट में थीटा स्ट्रक्चर बनता है क्योंकि इसके अंदर डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है और स्ट्रैंड सेपरेट पॉजिटिव सुपरकॉइल्ड बाय, और जैसे से पीछे की तरफ कॉइलिंग होती है तो कॉइलिंग को जो हटाता है उसके लिए अनदर एंजाइम की जरूरत पड़ती है, दैट इज टॉपो आइसोमरेज, जिसको डीएनए गायरेज भी कहते हैं, जो सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है कट करके. और प्रोकैरियोट का जो डीएनए वो सर्कुलर होता है और इसके अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो देख रहे हैं आप दोनों डायरेक्शन में जा रही है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है. प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि आप यूकैरियोट की बात करेंगे तो उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है. तो ये डिफरेंस हो गया. प्रोकैरियोट में जो ओराई होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो एक ही होता है, जबकि यूकैरियोट में ओराई जो होता है वो सेवरल हो सकते हैं. देन प्रोकैरियोट के एंजाइम डिस्कस कर लेते हैं. प्रोकैरियोट के एंजाइम आप देख रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज कितना था? एक ही था, लेकिन 5 यूनिट थी. लेकिन प्रोकैरियोट में 3 डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट डीएनए के अंदर देखेंगे तो पॉलीमराइजेशन जो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के अंदर ऑल 3 आर हेल्प्स इन पॉलीमराइजेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन इज ऑलवेज 5'3'. एंड एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी का मतलब है कि जब किसी डीएनए को आप किसी कॉर्नर से कट करते हो, कौन से कॉर्नर से? 3' कॉर्नर से कट कर रहे हो या 5' से कर रहे हो, तो 5' से 3' की तरफ कट करने में आपका फर्स्ट काम आता है, यानी कि फर्स्ट वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है वो प्रूफ रीडिंग में ज्यादा काम आता है. सेकंड और थर्ड में आप देखो 3' 5' तो तीनों के लिए लिखा हुआ है. 3' 5' की एक्टिविटी 3' 5' की तरफ से हटाना, डायरेक्शन की तरफ से कट करना में तीनों डीएनए पॉलीमरेज काम आते हैं, लेकिन 5' 3' की तरफ से हटाने में केवल एक ही एंजाइम काम आता है, वो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जिसको कॉनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं. और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो कॉपी बनाने की जो होती है वो किसकी होती है? 400 डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की होती है, और सेकेंड तो रिपेयर में काम आता है, और कॉपी थर्ड की जो होती है वो 10 to 20 कॉपी बनाने में हेल्प होती है. लेकिन पॉलीमराइजेशन सबसे ज्यादा कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है. हेलिकेज ओपनिंग में काम आता है, जिसे पहले डिस्कस किया था. आरएनए प्राइमर को जोड़ने में काम आता है. टॉपो आइसोमरेज सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है. डीएनए लाइगेज डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ने में काम आता है. डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो स्पेशली रिपेयर एंजाइम में काम आता है, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है कैरी आउट रेप्लिकेशन यानी पॉलीमराइजेशन में काम आता है. तो मेनली इसी का काम होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कंप्लीट रेप्लिकेशन अपन ने डिस्कस किया. आपको अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लेक्चर का बेनिफिट ले सकें. सो गुड डे टू ऑल, गुड डे स्टूडेंट्स.